Hello, students. This is the third chapter of your economics book, and that is money and credit. In this chapter, we are going to read about money as a medium of exchange, modern forms of money, loan activities of banks, two different credit situations, terms of credit, formal sector credit in India, self help groups for the poor. So, first heading is money as a medium of exchange. So, as it suggests that how money works as a medium of exchange. Students, money is very much important part of our life. Not even a single day is there when no transaction is made with money. So, from this we concluded that money is an integral part of our lives. In the first paragraph, they explain that how money works as a transaction or money work as a medium of exchange because in all the transactions we used money, whether we want to buy goods or we also use money to get some services also, like if we go to the doctor and for the treatment, so we must exchange it with money, like the doctor helps us for treatment and we provide him money as his fees. So whatever the good we brought from the market or whatever the service we get, we have to give some money as a transaction. For some, there might not be any actual transfer of money. Sometimes what we have seen that there might be not any actual transaction of money taking place now, but a promise to pay money later. Sometimes what we have done that if we exchange some things with our friend or the shopkeeper whom we know, we promise them to pay later and we get the things from the particular shop. So, have you ever wondered why transactions are made in money? And the reason is simple, a person holding money can easily exchange it for any commodity or service. अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि सभी ट्रांजैक्शंस जो हैं हम मनी में क्यों करते हैं, वाई. अब द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हमें कुछ भी कमोडिटी मतलब कोई भी चीज़ खरीदनी है या हमें कोई भी सेवा लेनी है तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है. Thus, everyone prefers to receive payment in money. In our country, everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. For example, there they give the example of shoe manufacturer. Like he wants to sell his shoes in the market and buy wheat. कि वो अपने शूज़ को मार्केट में सेल करना चाहता है और वीट खरीदना चाहता है. एंड द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज व्हाट ही विल डू कि पहले वो एक्सचेंज करेगा शूज़ को किससे, मनी से. यानी वो कोई ख़रीदार उससे शूज़ ख़रीदेगा और उसे पैसा मिलेगा और उस मनी को वो यूटिलाइज़ करेगा वीट ख़रीदने के लिए. अब अगर हम ये सिचुएशन इमेजिन करें कि अगर उसके पास पैसा नहीं होता, यानी हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में मनी नहीं थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उस टाइम पीरियड में बार्टर सिस्टम चलता था. अब व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत होती है, यानी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ एक्सचेंज की जाती है. यानी difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. अब यहाँ पर मनी की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि मान लो अभी तो हमने ये पढ़ा कि एक शू मैन्युफैक्चरर है और वो शू मैन्युफैक्चरर अगर
आज के टाइम पे वीट खरीदना चाहता है तो वो अपने शूज़ बेचेगा, जो पैसा उसे मिलेगा उसे वो वीट खरीद लेगा। अगर हम ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें कि जब मनी नहीं थी और एक शू मैन्युफैक्चरर को वीट खरीदना होता था, तो सबसे पहले उसे एक ऐसे सेलर को ढूंढना होता था जो वीट रखता हो और उसे शूज़ की भी डिमांड हो। यानी जो शू मैन्युफैक्चरर है वो शूज़ बेचना चाहता हो और दूसरा वो जो वीट खरीदना चाहता है वो दूसरे पर्सन के पास वीट भी हो और वो शूज़ भी खरीदना चाहता हो और अपने वीट को बेचना चाहता तो इस सिचुएशन में डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो उस सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था कि एक पर्सन जो है जो वो बेचना चाहता है, दूसरा उसे ख़रीदना चाहता हो और दूसरे के पास वो चीज़ हो जिसे पहला ख़रीदना चाहता है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि बार्टर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy in a barter system. तो ये क्या कहलाता है? अंडरलाइन करेंगे इसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट और असेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम. Now, in contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminate the need of double coincidence of wants. तो इस कंट्रास्ट में अगर हम देखते हैं कि वो इकोनॉमी जहाँ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे कब हुआ करती थी, एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी कि दो लोगों की जो इच्छाएं हैं वो सेम होनी चाहिए, कि जो पहला बेचना चाहता है दूसरा उसे ख़रीदना चाहता हो और दूसरे के पास वो चीज़ हो जिसे पहला ख़रीदना चाहता है। तो दैट वी कॉल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था बार्टर सिस्टम का। लेकिन मनी के आने के बाद ये जो सिचुएशन है ये एलिमिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की अब ज़रूरत नहीं है। जैसा पहले एग्जांपल दिया गया था, इफ़ अ पर्सन वांट टू शू मैन्युफैक्चरर वांट टू बाय अ व्हीट, देन ही हैज़ टू लुक फॉर हिज शूज़ बायर, और उससे वो जो मनी मिलेगी उससे वो क्या ख़रीद सकता है? वीट खरीद सकता है। तो मनी ने ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ख़त्म कर दिया। नाउ इज़ इट नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शूज़ एट द सेम टाइम सेल हिम wheat? All he has to do is find a buyer for his shoes, कि उसे सिर्फ बायर को ढूंढना है शूज़ के। एंड वंस ही हैज़ एक्सचेंज हिज shoes for money, he can purchase wheat, any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. तो इसे अंडरलाइन करेंगे कि मनी एक्ट करती है एज अ इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, कि मनी एक इंटरमीडिएट का, एक मध्यस्थ का रोल प्ले करती है एक्सचेंज प्रोसेस में। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी कॉल इट अ मीडियम ऑफ exchange. Now we come to the I hope all you understand it. Here we see three important terms like double coincidence of wants, barter system, and third we have seen money as a medium of exchange. Now we come to another important heading, and that is modern forms of money. Here we see that what are the modern forms of money, like paper notes, coins, and credit cards that we call plastic money. All these are modern forms of money.
बट मनी इन एंशंट टाइम वॉज डिफरेंट, जिसको हम पैसे के रूप में यूज़ करते थे एंशंट टाइम में, वो डिफरेंट थी. देयर दे गिव सम पिक्चर्स ऑल्सो कि किस तरह से एंशंट टाइम में या मेडिवल टाइम में जो डिफरेंट रूलर्स हमारी कंट्री में हुए थे, उन्होंने किस तरह के कॉइन्स को यूटिलाइज़ किया था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और जब तक ये कॉइन्स भी नहीं थे तो किस चीज़ को एज अ मनी के रूप में यूज़ किया जाता था. दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पार्ट, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction. अभी हमने ये पढ़ा था कि मनी एक ऐसी चीज़ है जो मीडियम है एक्सचेंज का ट्रांजैक्शंस में, कि जो भी लेन देन होता है उसका मीडिएटर यानी उसमें मध्यस्थ कौन है, लेन देन में मनी है. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, अगर कॉइन्स भी जब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो उस टाइम पीरियड में अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज अ मनी. किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है? दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन 1 मार्क्स कि विच काइंड ऑफ मनी इज़ विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज एज अ मनी बिफोर कॉइन्स. तो किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता था एज अ मनी कॉइन्स के बनने से पहले? द वेरी अर्ली एजेस इंडियन यूज ग्रेन्स, अंडरलाइन करेंगे इसे, ग्रेन्स एंड कैटल एज अ मनी, कि कुछ ख़रीदना होता था. इवन आज भी हम बहुत सारे पिछड़े इलाकों में ये देखते हैं कि कुछ ख़रीदना होता है छोटी मोटी शॉप से तो अनाज का कुछ ग्रेन्स को लेकर और उससे कुछ चीज़ें ले ली जाती हैं. तो पहले भी ये यूज़ होता था, लाइक ग्रेन्स और कैटल्स को यूज़ करते थे मनी के रूप में. नाउ देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन्स. तो सबसे पहले क्या यूज़ होता था? ग्रेन्स और कैटल को एज अ फॉर्म ऑफ मनी, कि कुछ ख़रीदना है तो जो भी पशु वगैरह होते थे उनको दे दिया जाता था, या बड़ी चीज़ लेनी है तो पशु वगैरह दे दिए जाते थे, और अगर छोटी चीज़ लेनी है तो ग्रेन्स जो है वो दे दिया जाता था. उसको एज अ मनी यूज़ करके और एक्सचेंज कर ली जाती थी चीज़ें. उसके बाद एक टाइम पीरियड आया व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग कॉइन्स, को हमने यूज़ करना शुरू किया था, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, अ फेज़ विच कॉन्टिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. और ये जो कॉइन्स का फेज़ था हम लास्ट सेंचुरी में देख चुके हैं. अब करेंसी हमारी कंट्री की जो है पेपर नोट्स हैं, रुपी जो है हम उसे करेंसी अपनी कंट्री की बोलते हैं. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को अंडरलाइन करेंगे. दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि नेम सम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. तो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made up of precious metal as a gold. If we talk about the ancient coins, what we have seen there, that in ancient time different rulers use precious metals in making of coin, like silver, gold, etc. So that silver and gold, if sometime what happens that एक राजा का राज ख़त्म हुआ, उसके बाद वो कॉइन्स जो हैं वो चलने बंद भी हो गए, तो उस पर्टिकुलर कॉइन की अपनी खुद की कुछ वैल्यू है. यानी एक राजा, मान लो कि मुग़ल्स के टाइम में जो कॉइन्स जो थे वो शुरू हुए, तो या गुप्ता पीरियड में जो कॉइन्स शुरू हुए वो लेटर ऑन आकर अगर बंद हो गए, तो उसके बाद अगर वो सोने के हैं तो उन्हें पिघलाकर किसी भी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है. उसकी उस कॉइन की अपनी खुद की वैल्यू भी है. बट अगर इफ़ वी टॉक अबाउट मॉडर्न करेंसी, तो मॉडर्न करेंसी एक पेपर नोट है और उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है. लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन आर कंट्री इन 2016. 8 नवंबर 2016 में जब पेपर नोट्स को बंद कर दिया गया, तो वो रद्दी के सिवा कुछ नहीं थे. वो ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ प्रीशियस मेटल लगा हुआ था और उसको हम पिघलाकर या उसको कंजर्व करके रख सकते हैं. वो रद्दी हो गए, पेपर हो गया, डस्टबिन में फेंक दो उसको, कोई नीड नहीं थी उसकी. तो लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था. जब प्रीशियस मेटल्स को यूज़ किया जाता था कॉइन के रूप में, तो उस कॉइन की अपनी भी वैल्यू होती थी, जबकि मॉडर्न करेंसी में ऐसा नहीं है. देन व्हाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड वी एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज?
It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of our country. क्योंकि उसे किसने ऑथराइज किया है? गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स. हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है करेंसी नोट्स को. और किसके बिहाफ पे? ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज़ द रीज़न वाई वी एक्सेप्ट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज पर द लॉ. No other individual or organization is allowed to issue currency. So this is the reason why हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे करेंसी बनाने का अधिकार हो. करेंसी बनाने का अधिकार किसको है? करेंसी बनाने का अधिकार हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है. और उसे किसने ऑथराइज किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. इसके अलावा हमारी कंट्री में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होनी है तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि वो पर्सन इंडियन रुपीज़ में वो मनी नहीं लेगा. क्योंकि हमारी कंट्री में कौन सी करेंसी है? रुपी करेंसी है. और उसी को हर ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जाता है. बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज़ रुपी एज अ करेंसी ऑफ आवर कंट्री. बिकॉज इट इज़ मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसने ऑथराइज किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसीलिए हम देखते हैं कि मनी रुपी जो है पूरी कंट्री में एक्सेप्ट किया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ वी कम टू द अनदर टॉपिक इन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड दैट इज डिपॉजिट्स विद द बैंक. दिस इज द सब टॉपिक ऑफ दिस हेडिंग. नाउ डिपॉजिट्स विद बैंक. डिपॉजिट्स मतलब कि इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ हम ये देखते हैं कि जब सैलरी मिलती है तो एंड होता है मंथ का, सैलरी मिलती है तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत पैसा होता है. तो व्हाट कॉमन मैन और व्हाट पर्सन डिसाइडेड टू डू विद द मनी कि वो चाहता है कि उसकी जो मनी है वो बहुत सेव होकर रहे. इसके लिए वो क्या करता है कि उस मनी को बैंक में डिपॉजिट कर देता है. बैंक में उसको अपने एक्स्ट्रा कैश को जो उसको यूज़ करना है मंथ में उसको अपने पास रख के अपने एक्स्ट्रा कैश को वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है. और उसे हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट विद बैंक्स. उसके बाद बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट. बैंक भी उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में वो उसे कुछ इंटरेस्ट देता है. क्योंकि वो पर्सन अपना पैसा जमा कर रहा है तो उसके बदले में बैंक उसे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा. इन दिस वे पीपल्स मनी सेव. अब दो ऑब्जेक्टिव उसके पूरे हो जाएंगे उस पर्सन के. एक तो उसकी मनी सेव हो जाएगी क्योंकि अगर वो घर पे रखता है तो उसे खतरा रहता है एक्स्ट्रा मनी अगर घर पे रखता है, इसलिए वो बैंक में सबमिट कराता है तो इससे उसको फ़ायदा होता है क्योंकि उससे उसकी मनी सेफ है. और पीपल ऑल्सो हैव अ प्रोविज़न टू विदड्रॉ द मनी एंड व्हेन दे रिक्वायर. इसके अलावा उसे इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है. तो दो काम उसके हो जाते हैं. फर्स्ट मनी इज सेव एंड देन ही ऑल्सो get some interest over it. Now people also have the provision to withdraw the money as when they require. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक बार बैंक में जमा कराने के बाद वो उस पैसे को नहीं निकाल सकता है. He can withdraw the money whenever he wants. तो since the deposit in bank accounts can be withdrawn demand, these deposits are called demand deposits. तो ऐसे डिपॉजिट यानी ऐसी जो हमने जमा किया है धनराशि बैंक के अंदर जिसे हम अपनी डिमांड पे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, दैट वी कॉल डिमांड डिपॉजिट. मनी दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. So this is the definition of demand deposits. You can underline it. It is also the new term for you. What are demand deposit? Deposits that can be withdrawn on our demands are called demand deposits. Now we come to
demand deposit offer another interesting facility also. It is this facility which lended to the essential characteristics of money. अब डिमांड डिपॉजिट्स हमें एक और फैसिलिटी देती है. वो क्या फैसिलिटी है? चेक की फैसिलिटी है. लाइक हमने अपना पैसा बैंक में जमा कराया, वो हमारा डिपॉजिट है, और उस डिपॉजिट को हम कभी भी किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो चेक के रूप में उसको दे सकते हैं. अब व्हाट इज़ चेक? चेक की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है. लाइक हम कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं, हम कैश नहीं देना चाहते, तो वी कैन गिव अदर पार्टी चेक्स ऑल्सो. फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट, यानी अगर हमें पेमेंट करनी है चेक से, तो जो भी पे करने वाला है उसके अकाउंट में पैसा है तो वो चेक दे सकता है दूसरे पर्सन को. अब व्हाट इज़ चेक? Check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. यानी चेक एक ऐसा पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट उस पर्सन को देना चाहता है अपने बैंक अकाउंट से जिसके नाम उसने चेक को इशू किया है. So there they give the picture of check also. Now we come to, thus we see the demand deposit share the essential feature of money. अब इस तरह से जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो बहुत सारे फीचर्स शो करते हैं मनी के. The facility of check against demand deposit make it possible directly settle payment without the use of cash. If person don't want to give the money in cash, then he or she can give check to other person. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. तो इस तरह चेक भी क्या है? मनी है in modern economy. You must remember that the role banks play here. Banks play very much important role there. कि बैंक्स क्या करते हैं, पहले जो डिपॉजिट्स हैं उनको करते हैं एंड उसके बाद वो जो जिस भी पर्सन ने डिपॉजिट्स किए हैं उसके बदले में वो उसे इंटरेस्ट देते हैं. इसके अलावा वो अपनी पेमेंट को अगर चेक के रूप में किसी और पर्सन को देना चाहता है तो banks can provide this kind of service also. The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of modern banking system. इस तरह से एक modern banking system का हिस्सा है. Now we come to the another heading and that is loan activities of bank. Which kind of activities are adopted by banks for providing the loan to the people? कि ऋण किस तरह से provide करता है बैंक. तो let us take the story of bank further and what do the bank do with the deposit they accept from the public. In the previous heading we had seen that how banks get some money from the other person as a deposit. Now what the bank do with those deposits, that we are going to read in this part. There is an interesting mechanism at work here कि very interesting mechanism seen here that bank keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. कि बैंक अपने पास एक बहुत ही small proportion रखता है उस डिपॉजिट का जो उसके पास जमा हुआ है और उसे नियर अबाउट वो 15%, इसको अंडरलाइन करेंगे, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड कैन कम इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो कि हाउ मच बैंक ऑलवेज होल्ड विद देमसेल्फ, कितना परसेंट कैश बैंक अपने पास रखता है डिपॉजिट्स का. तो वो 15% जो है डिपॉजिट्स का कैश अपने पास रखता है. दिस केप्ट अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स. और वो ऐसा किस लिए करता है? क्योंकि किसी भी टाइम जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं. जो अभी हमने किया था कि डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. तो बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट हुआ है वो सारा ही डिपॉजिट आगे लोन देने के लिए नहीं दे देता है, बल्कि वो अपने पास कुछ परसेंटेज जो है वो रखता है, near about 15%. This is kept as provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank on given day. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash.
तो इस तरह से अगर बहुत सारे डिपॉजिटर उसके एक ही दिन आ जाएं पैसा लेने के लिए, तो कम से कम उतना पैसा उसके पास हो डिपॉजिट करने के लिए। इसलिए बैंक जितना भी पैसा उसके पास आता है उसको आगे एक्सटेंड नहीं करता है लोन देने के लिए, बल्कि वो कुछ परसेंटेज अपने पास भी रखता है। Banks use the major portion of the deposit to extend loan. This is also very much important. इसको अंडरलाइन करेंगे। बैंक्स के पास एक मेजर डिपॉजिट है और वो डिपॉजिट वो लोन्स को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करता है, यानी जो डिपॉजिट उसके पास आया वो आगे दूसरे पर्सन्स को उसे लोन में दे देता है। There is a huge demand for loan for various economic activities. Nowadays, what we have seen कि most of the people take loans for their businesses. So we shall read more about this in the following section. Banks make use of the deposit of meet the loan requirement of the people. कि बैंक यूटिलाइज द डिपॉजिट्स दे गेट फ्रॉम द डिपॉजिटर टू एक्सटेंड द लोन to fulfill the requirement of the people. In this way banks mediate between, अब इस तरह से बैंक मीडिएट करता है दो लोगों के बीच में। एक तो वो जो पैसा सबमिट कराते हैं, जो क्या कहलाते हैं, जिनके पास सरप्लस है, डिपॉजिटर्स कहलाते हैं, और दूसरे वो जिन्हें फंड्स की ज़रूरत है और वो बोरोवर्स कहलाते हैं। तो बैंक चार्ज हायर, बैंक की इनकम क्या होती है, बैंक की इनकम क्या है, बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, कि बैंक जो दूसरे पर्सन को लोन दे रहा है उससे वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। ऑन द अदर हैंड वो डिपॉजिटर्स को कम इंटरेस्ट देता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक की इनकम कहलाती है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोवर, बोरोवर कौन है, जो लोन ले रहा है, एंड व्हाट इज़ पेड टू द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर कौन है, जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है बैंक को। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का, वो ही क्या कहलाती है, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। तो बैंक की इनकम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोवर and what is paid to the depositor is their main source of income